وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے عورت کے رنگ بے شمار تیرے آنسو کے ہیں کتنے روپ، ہے عورت کے رنگ بے شمار تیرے آنسو کے ہیں کتنے روپ، کبھی کلی کبھی پھول کبھی خار، کبھی کلی کبھی پھول کبھی خار، کبھی شبنم کبھی طوفان کبھی آبشار، کبھی شبنم کبھی طوفان کبھی آبشار۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا۔ حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانہ کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب کے سب مرد تھے، نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو بنایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد حاکم ہے عورت پر۔ حضرات، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر سرکار مدینہ علیہ السلام کے دربار عالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد حاکم ہے عورت پر۔ حضرات، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شمید تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے، عورتوں کو صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا، جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے بھی لوگ دور رہتے، بیوہ عورتوں کو سب نگاہ حقارت سے دیکھتے۔ لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کرتے تھے، عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے، عورتوں سے جانور جیسا سلوک کیا جاتا، عورتوں کو اس کے باپ کے ترکہ سے حصہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، عورتوں کو حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت جرم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی۔ حضرات، بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ حضرات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں
कि वह तुम्हारी माँ बन सके, वह तुम्हारी बहन बन सके, वह तुम्हारी बेटी बन सके, वह तुम्हारी बहू बन सके, वह तुम्हारे घर की जीनत बन सके, वह तुम्हारे घर की रौनक बन सके। लोगों को बता दिया कि बेवा औरत को मुआशरे में जीने का पूरा हक है। आपने लोगों को सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि 25 साल की उम्र में एक 40 साल बेवा औरत से शादी करके बेवा औरत के मुकाम को बामे रूज तक पहुंचा कर दिखाया। हजरात, बानी इस्लाम ने लोगों को सबक दिया कि औरतों पर जुल्म न ढाओ, वह भी तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है, पलको जिगर का सुरूर है, उसको निगाहे इज्जत से देखो क्योंकि वह तुम्हारे घर की मलिका है। औरतों को बाप के तरका से हिस्सा दो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि औरतों का हिस्सा मर्द का आधा है। हजरात, बानी इस्लाम ने लोगों को दर्द दिया कि औरतों को मनहूस तस्वुर न करो, वह घर की रौनक और बरकत है। बानी इस्लाम ने लोगों को बताया कि जो औरतों के हुकूक तुम पर वाजिब हैं उनको अदा करो। बानी इस्लाम ने बताया कि औरतों के साथ जानवर जैसा सलूक न करो वरना आने वाली नस्ल तुमको कभी मुआफ न करेगी। लफ्ज़ औरत को गाली तस्वुर न करो, लफ्ज़ औरत इज्जत व आबरू के मखजन का नाम है। हजरात, इस्लाम दुनिया में फैलने के बाद औरतों का मुकाम बामे उरूज में पहुंच गया। औरतों को लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे। वह इंसान जो औरतों को जानवर समझते थे अब घर की मलिका समझने लगे। हजरात, तारीख गवाह है इस्लाम ने जो मुकाम औरत को दिया है, जो बुलंदी औरत को दिया है, जो इज्जत औरत को दिया है, जो रिफात औरत को दिया है, जो हुकूक औरत को दिया है, न आज तक कोई मजहब दे सका है, न कयामत तक दे सकता है। हजरात, इस्लाम ने औरतों को बुलंद मुकाम अता किया, औरतों को कुल शुमार किया, औरतों को घर की मलिका बनाया, उसकी हिफाजत के लिए कानून मुकर्रर किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औरतों अपने घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। हजरात, अगली जाहिलियत से मुराद कब्ल इस्लाम का जमाना है जिस जमाने में औरतें इतरा कर निकलती थी, जिस जमाने में औरतें इतरा कर निकलती थी अब उनका जिस जमाने में औरतें इतरा कर निकलती थी उनका मकसद यह होता था कि गैर मर्द उसको देखें और लिबास इस तरह पहनती थी कि जिस्म का नसीबो फराज नुमाया हो जाता था। हजरात, इस्लाम औरतों को दर्द देता है कि तुम घर में रहो, बेपर्दा न निकलो। पर्दा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तुम नाजुक आईना हो, हल्की सी चोट तुम्हें चकनाचूर कर सकती है। तुम्हारी इज्जत आबरू आईना की तरह नाजुक है, एक मर्तबा शिकाब पड़ जाने के बाद उसका मदावा नहीं हो सकता। और तो तुम फूल हो, घर तुम्हारे लिए चमन है, फूल चमन ही में जेब देता है, अगर फूल चमन से बाहर हो जाए तो मुरझाने लगता है। हजरात, इस्लाम ने औरतों की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया, औरतों को पर्दा में रहने की ताकीद की। कुरान और हदीस में पर्दे की बहुत ताकीद आई है। औरतों को चाहिए कि अपने मुकाम को समझे, पर्दे का खास तौर पर एहतमाम करे, पर्दे में रहकर खास तौर पर अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, इस्लाम का हुक्म माने। जिस इस्लाम से उनका खोया हुआ मुकाम मिल गया उसी में उनके लिए दोनों जहां की भलाई है। हजरात, इस तरक्की याफ्ता दौर में बाज़ तालीम याफ्ता औरतें, डिग्री याफ्ता औरतें इस्लाम पर यह इल्ज़ाम लगाती हैं, इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर मुक़य्यद करना चाहता है। इस्लाम औरतों को जहाँ दीवारी में बंद करके उसकी आज़ादी छीनना चाहता है। इस्लाम औरतों की आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहता है। ऊँची सोसाइटी की बाज़ औरतें इल्ज़ाम लगाती हैं इस्लाम औरतों की तरक्की को पसंद नहीं करता। बाज़ औरतें इल्ज़ाम लगाती हैं इस्लाम औरतों को चादर में रहकर इस्लाम औरतों को पर्दे में रखकर महसूर करना चाहता है जो कि सेहत के लिए मुज़िर है। हजरात,
मैं उन तालीम याफ्ता औरतों से पूछना चाहता हूँ कि तुम इल्जाम किस पर लगा रही हो? इस्लाम पे नहीं, बल्कि अपने मुहसिन पे लगा रही हो। इस्लाम का एहसान औरतों पर इतना ज्यादा है कि कयामत तक उसका बदला कलम जबान से अदा नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूँ उन ग्रेजुएट औरतों से, उस वक्त तुम्हारी आजादी कहाँ गई थी जब तुम्हारे साथ जानवर जैसा शुरू किया जाता था? मैं पूछना चाहता हूँ उन ऊंची सोसाइटी की तरक्की याफ्ता औरतों से, उस वक्त कहाँ गई थी तुम्हारी तरक्की जब तुम जिंदा दफन कर दी जाती थी? मैं पूछना चाहता हूँ उन ऊंची सोसाइटी की तरक्की याफ्ता औरतों से, उस वक्त कहाँ गए थे तुम्हारे हुकूक जब तुमको नजाकत का मुजस्समा समझकर हालत एजो निफास में तुम्हारे खाने का बर्तन तक कर दिया जाता था? हजरात, अगर बानी इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो लफ्ज़ आज की गाली तस्वुर किया जाता। अगर तुम इस्लाम पे इल्जाम लगा रही हो तो तुम एहसान फरामोश हो, तुम अपने मुहसिन पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम इसी तरह इस्लाम पर इल्जाम लगाती रहोगी तो आने वाली नस्लें तुम्हें एहसान फरामोश के नाम से याद करेगी। हजरत, ये आदमी डंके की चोट पर कहता है, ऐ ग्रेजुएट औरतों, तुम्हारी इज्जत व आबरू बगाए पर्दे के पीछे ही है। तुम अपने रिदाए हिकमत को पर्दा में रहकर दागदार होने से बचा सकती हो। अगर इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो तुम्हारे फायदे के लिए, अगर इस्लाम ने चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया है तो तुम्हारे फायदे के लिए। इस्लाम जानता है कि औरत एक नाजुक आईना है, उसे पत्थर से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत एक भड़कती हुई आग है, उसे बारूद से बचाना होगा। इस्लाम जानता है कि औरत एक सफेद चादर है, उसे दाग धब्बा से बचाना होगा। इसीलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया कि औरत पर्दा में रहकर महफूज रह सकती है। हजरत, इस्लाम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, लेकिन जीनत करने से मना न फरमाया, बनाव श्रृंगार से मना न फरमाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि औरतों को मेहंदी लगाने में हर्ज नहीं, लेकिन मैं नहीं लगाती, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खुशबू पसंद नहीं। हजरत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरतों को चाहिए कि अपने हाथ की हथेलियां मेहंदी के रंग से बदल लें। हजरत, मालूम हुआ इस्लाम औरतों को जीनत करने से मना नहीं करता। हजरत, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपना श्रृंगार जाहिर न करें, दुपट्टे अपने गिरबान पर डाले रखें, अपना श्रृंगार जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर। हजरात, मालूम हुआ कि औरतें बनाव श्रृंगार करें, अपने शौहरों के लिए जीनत करें, अपने शौहरों के लिए श्रृंगार करें, अपने शौहरों के दिल को लुभाने के लिए, ताकि शौहर का दिल बीवी की तरफ मायल हो, दूसरी औरत की तरफ न जाए। कुरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि बनाव श्रृंगार करो अपने शौहरों के लिए। आज अगर औरतें बनाव श्रृंगार करती हैं तो इसलिए कि गैर मर्द उसकी तरफ देखें। आज अगर औरतें बनाव श्रृंगार करती हैं तो इसलिए कि गैर मर्द उसकी तरफ देखें। बाद औरतें मर्दों से मुशाबहत करती हैं, अपने बाल कटवा लेती हैं, मर्दाना लिबास पहनती हैं और खुलेआम सड़कों पर घूमती हैं। देखने वालों को यह फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि मर्द है औरत है या मर्द है। अल्लाह की लानत है ऐसी औरत पर जो मर्दों से मुशाबहत करे। हजरात, औरतों की आदत है कि वे ज्यादा बातें करती हैं, एक दूसरे की गीबत करती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मैंने दोज़ख में अक्सर औरतों को देखा। कि मेराज की रात मैंने दोज़ख में अक्सर औरतों को देखा। जिब्राइल से पूछा कि किस सबब से दोज़ख में गई हैं, तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये अपने शौहर की नाफरमानी और गीबत की वजह से दोज़ख में गई हैं। ये अपने शौहर की नाफरमानी और गीबत की वजह से दोज़ख में गई हैं। हमारी माँ और बहनों को दूसरे की गीबत करने से बचना चाहिए, क्योंकि गीबत बुरी चीज है, गीबत गुनाह कबीरा है। जो मुसलमान किसी मुसलमान की गीबत करे तो भाई का गोश्त खाता है। लिहाजा हमारी माँ और बहनों को ज्यादा बातें करने से
ऐसा चल जाओ। जो ज्यादा बातें करती हैं वो झूठ ज्यादा बोलती हैं। लिहाजा हमारी माँ और बहनों को ज्यादा बातें करने से परहेज करना चाहिए। हजरात, एक शख्स ने ये ऐलान किया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पेश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक शख्स ने यह ऐलान किया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पेश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोगों ने तरह तरह के झूठ पेश किए लेकिन कबूल नहीं किया गया। एक शख्स खड़ा हुआ और कहा कि सबसे बड़ा झूठ मैं बोलता हूँ। मैंने देखा कि दो औरतें एक जगह बैठी हैं और दोनों खामोश हैं। मैंने देखा कि दो औरतें एक जगह बैठी हैं और दोनों खामोश हैं। आखिरकार इनाम का हकदार यही शख्स हुआ। लिहाजा हमारी माँ और बहनों को ज्यादा बातें करने से और झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। हजरात, उस जमाने की औरतें और इस जमाने की औरतों में काफी फर्क है। उस जमाने की औरतें खुद को महकूम और मर्द को हाकिम समझती थी। इस जमाने की औरतें खुद को हाकिम और शौहर को महकूम समझती हैं। उस जमाने की औरतें अपने घरों के ताक में कुरान सजाना पसंद करती थी। इस जमाने की औरतें अपने घरों के ताक में टीवी सजाना पसंद करती हैं। उस जमाने की औरतें पारसा शौहर पसंद करती थी। इस जमाने की औरतें फैशन परस्त शौहर पसंद करती हैं। उस जमाने की औरतें चार दीवारी में रहना बात फक्र समझती थी। इस जमाने की औरतें शहरे बाजार तफरीह गाँव में घूमना तरक्की समझती हैं। मेरी माँ और बहनों, याद रखो, जब तक अपनी रवेश को तर्क करके उस जमाने की औरतों के नक्शे कदम पर न चलोगी, दोनों जहां की भलाइयां हासिल नहीं कर